Hello my dear lovely students. Welcome to our today's EVS class. Students, in our class we are going to start a new lesson. Yes, it's our lesson number 3, and what is the name of the lesson? Safety rules. What is the name? Safety rules. Now, as you know my dear students, in each and everything there are rules. आपको पता है ना students, सब चीज़ों में रूल्स होता है. जैसे स्कूल में when you enter in the school there are some rules you have to follow. स्कूल के some rules है जो टीचर्स और स्टूडेंट्स को फॉलो करने पड़ते हैं, है ना. सिटीजन्स का, एज वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया वी हैव सम रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो, है ना. सिटीजन होने के नाते हमें बहुत से रूल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं. So in our today's chapter we are going to see what are safety rules. Safety means the rules which are safe for us. So without wasting much of our time, come let's start our today's lesson, safety rules. Now first we will see safety week. What is safety week? The school of Suzanne, Abhi, Manav, Ranjit and Rahul is having a safety week. They are learning many important safety rules from different helpers. Come let us learn with them. Now, the school of Suzanne, Abhi, Manav, Ranjit and Rahul are having a safety week. Now students, as you know, in the schools different programs are held. आपके भी स्कूल में बहुत अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स इवेंट होते होंगे, है ना. सो इन द स्कूल ऑफ सुजान सेम लाइक दैट इन योर स्कूल, जैसे आपके जो स्कूल में इवेंट होते हैं ना, सेम उसी तरह सुजान, अभी, मानव, रंजीत और राहुल के स्कूल में भी एक इवेंट हो रहा है और वो इवेंट का नाम क्या है? सेफ्टी वीक. नाउ व्हाट इज सेफ्टी वीक? They are learning many important safety rules. Now, in their safety week, they are learning the important safety rules. As each and everything has rules. कि हर चीज़ में rules होता है and we have to follow some rules. So in this safety week, we are going to learn the important safety rules. There are different types of safety rules. बहुत अलग अलग टाइप के safety rules होते हैं. So come let's learn it. Now, as you can see in the picture, in the book picture, we are going to learn safety week. Means in the school of Suzanne, Abhi, Manav, Ranjit, they are organizing safety week. Safety week means a week in which they are going to learn different safety rules. वीक में हमें different safety rules लर्न करना चाहिए. अब ये इनके स्कूल में वो सेफ्टी वीक कैसे सेलिब्रेट करते हैं? कम लेट्स सी. See in the page number 125, there are so many safety rules, right? So come let's start. First is safety while riding vehicle. Now, safety while riding vehicle. Vehicle means if you have bicycle or if your father has bike, that is known as vehicles. Or if you have car, right? So safety while riding vehicles, just imagine you are riding a cycle. आप imagine करो आप साइकिल चला रहे हो रोड पे. while riding cycle you have to follow some rules. जब आप साइकिल चला रहे हो तो आपको रोड के कुछ रूल्स फॉलो करना चाहिए, है ना. You should not harm anyone on the road, even with animals also. You should not harm animals. आप जब साइकिल चला रहे हो तो आप रोड पे साइकिल चलाते वक्त किसी को हार्म नहीं करना चाहिए. हार्म नहीं करना चाहिए मीन्स किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए. और इन सब में एनिमल्स भी एडेड होते हैं. एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, गोट, काउज, ये सब होते हैं ना रोड पे. सो यू शुड नॉट हार्म देम व्हाइल यू आर राइडिंग व्हीकल. जब आप साइकिल या बाइक चला रहे हो तो आपको सेफ्टी के साथ चलाना चाहिए. रोड पे किसी को हार्म नहीं करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑन रोड. नाउ सेफ्टी ऑन रोड.
अब जब रोड पे चलते हो, व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, यू शुड बी मोर अटेंटिव, आपको ध्यान देना चाहिए जब आप रोड पे चल रहे हो। वाइल क्रॉसिंग द रोड यू शुड लुक बोथ द साइड, जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड, दोनों साइड आपको देखना चाहिए। अगर कोई व्हीकल आ रही है तो वहीं स्टॉप हो जाना चाहिए, अगर कोई व्हीकल नहीं आ रही है तो तभी आपको रोड क्रॉस करना चाहिए। क्लियर? एंड यू शुड नॉट रन ऑन द रोड, रोड पे आपको भागना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारी व्हीकल्स क्रॉस होती रहती है ना, तो उससे आपको चोट लग सकती है, इसलिए आपको रोड पे भागना नहीं चाहिए। यू शुड वॉक विथ एन एल्डर पर्सन ऑन रोड, रोड पे आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। यू शुड वॉक विथ एन एल्डर पर्सन मतलब किसी बड़े इंसान के साथ आपको रोड पे चलना चाहिए। सो इट इज़ द सेफ्टी ऑन रोड। Now next is safety at home. Now you might be thinking what is safety at home? घर पे किस चीज़ से सेफ्टी रहना चाहिए? घर पे भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे आपको सेफ रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर वॉचिंग टू मच टीवी, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक टीवी देखेंगे, सो देयर विल बी पेन इन योर आइज़, आपके आइज़ में पेन होगा। एंड वॉचिंग टू मच टीवी इज़ हार्मफुल फॉर योर आइज़ एंड हेल्थ, बहुत ज़्यादा टीवी देखने से वो आपके हेल्थ और आइज़ पे इफ़ेक्ट करेंगे एंड इट इज़ नॉट सेफ। क्लियर? जस्ट इमेजिन यू आर प्लेइंग इन द किचन, अगर आप अपने होम के किचन में खेल रहे हो तो क्या होगा? यू विल गेट हार्म बिकॉज देयर इज गैस इन द किचन, देयर आर सो मैनी यूटेंसिल्स इन द किचन एंड इफ द यूटेंसिल्स फेल ऑन यू, अगर किचन के यूटेंसिल्स आपके ऊपर गिर गए तो आपको चोट लगेगी ना। In same that way there are many safeties, many danger also in the house. House में भी काफ़ी चीज़ों से आपको danger है, so you should be safe at home also. Now next is safety at playground. Now playground, as you play in the ground, you have seen that many things you can get affected. Some people they can harm you. प्लेग्राउंड पे आप जा रहे हो, अकेले हो, तो कुछ लोग आपको हार्म कर सकते हैं, सम बैड पीपल, जो बुरे लोग होते हैं। इफ़ यू आर प्लेइंग सीसॉ, स्विंग और हैंगिंग, यू शुड बी अलर्ट। अगर आप प्लेग्राउंड पे खेल रहे हो तो आपको अलर्ट होके खेलना चाहिए। सेफ्टी एवरीवेयर, सी सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग एंड वेर एवर यू आर इन द हाउस, स्कूल, गार्डन or anywhere else, you should be safe everywhere. आपको, आप जहाँ भी हो, घर, स्कूल, बाहर, गार्डन, रोड, जहाँ भी हो, मतलब हर जगह आपको सेफ्टी कंपल्सरी है। Now turn the page. Now we will see safety at home. Now how you can be safe at home, आप घर पे सेफ कैसे रह सकते हो? Now we will see that. We must observe the following safety rules at home. Now here are some safety rules for home. यहाँ पर होम के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स दिए हुए हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट इज डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड, टूल्स एंड सीजर्स। नाउ यू शुड नॉट प्ले विथ द शार्प ऑब्जेक्ट्स, आपको शार्प ऑब्जेक्ट्स से खेलना नहीं चाहिए। शार्प ऑब्जेक्ट्स मतलब जैसे ब्लेड हो गया, सीजर हो गया, नाइफ हो गया, है ना, इन सब से खेलना नहीं चाहिए। अगर आप इन सब से खेलोगे तो आपका हाथ कट जाएगा और वहाँ से ब्लड आएगा, सो इट इज़ डेंजरस फॉर यू। नेक्स्ट इज वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेस एंड प्लग्स एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। Now in the house you can see many electric things are there. आपके घर पे बहुत सारी इलेक्ट्रिक थिंग्स होती है, जैसे इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक आयरन लाइक दिस, इलेक्ट्रिक चार्जर और इलेक्ट्रिक वायर, टीवी वायर। सो यू शुड नॉट टच दिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, आप इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच नहीं करना चाहिए। अगर आपने टच किया, ऐसे जैसे आयरन गर्म है और आपने उसको टच कर दिया, तो यू विल बर्न योर हैंड, आप अपना हाथ जला दोगे एंड इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू।
Next is we should not play with fire. Right. We should not play with the fire means आपको फायर से मतलब आग से नहीं खेलना चाहिए. मैनी स्टूडेंट्स प्ले विद द मैच बॉक्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स मैच बॉक्स से ऐसे करके खेलते हैं. एंड इट इज़ डेंजरस. अगर वो फायर आपके क्लोथ्स में यानी कपड़ों में लग गई तो आपके पूरे क्लोथ्स बर्न हो जाएंगे. सो यू शुड नॉट प्ले विद द फायर. आग से कभी खेलना नहीं चाहिए. नेक्स्ट इज नेवर ओपन द डोर फॉर अ स्ट्रेंजर. Right, this is the main thing. Never open the door for a stranger. Imagine that you are alone in the house. Imagine करो आप घर पे अकेले हो और सडनली किसी ने डोरबेल नॉक किया, डोर पे नॉक किया या टिंग टोंग ऐसा डोरबेल बजाया. बिफोर ओपनिंग द डोर यू शुड आस्क हु इज देयर. दरवाजा खोलने से पहले आपको पूछना चाहिए कि कौन है. At least 3 times. 3 times you should ask who is there. If the answer is there is your mama, papa, brother, then only you should open. But if answer does not comes, you should not open the door. अगर आंसर आपके क्वेश्चन करने के बाद आंसर आया कि मम्मा है, पापा है या ब्रदर सिस्टर है, तभी आप डोर ओपन करना. वरना अगर आंसर नहीं आया, अगर कोई स्ट्रेंजर है, सो यू शुड नॉट ओपन द डोर. आप स्ट्रेंजर्स के लिए घर का दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए. डू नॉट प्ले अनसेफ गेम्स लाइक बैट बॉल इनसाइड द हाउस. नाउ यू नो दैट बैट बॉल इज द गेम दैट यू कैन प्ले ओनली इन द ग्राउंड. आपको पता है बैट बॉल सिर्फ ग्राउंड पे ही खेला जाता है. बट सम स्मॉल किड्स लाइक दिस बॉय, बट कुछ छोटे बच्चे जो है वो अपना बैट बॉल वाला गेम घर के अंदर ही खेलते हैं. एंड विच इज़ डेंजरस. आपके बॉल से आपका टीवी टूट जाएगा, आपका फ्रिज खराब हो जाएगा. राइट, घर में सब चीज़ें टूट फूट जाएंगी. सो यू शुड नॉट प्ले गेम्स लाइक बैट बॉल इनसाइड द हाउस. तो आपको घर के अंदर बैट बॉल जैसे गेम्स नहीं खेलना चाहिए. इट कैन बी डेंजरस. नाउ दिस वॉज द सेफ्टी एट होम. नाउ वी विल सी सेफ्टी ऑन रोड. ऑन रोड यू शुड बी सेफ फॉर मैनी थिंग्स. रोड पे चलते टाइम आपको बहुत सारी चीज़ों से सेफ्टी रखना चाहिए. लेट्स सी. अ रोड इज़ अ बिजी प्लेस. मैनी व्हीकल्स रन ऑन द रोड. वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल ऑन द रोड. आर केयरलेसनेस कैन कॉज एक्सीडेंट. सम बेसिक safety rules are. Now as you know, while you are walking on the road, you are running. रोड पे वॉक करते टाइम आप कभी कभी भागने लगते हो, विच कैन बी डेंजरस. वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है क्योंकि रोड पे हमेशा व्हीकल्स आती जाती रहती है. सडनली आप भागे और किसी व्हीकल ने आपको टक्कर मार दी, सो यू विल गॉट इंजर्ड. आप इंजर्ड हो जाओगे, आपको चोट लग जाएगी. सो यू वाइल वॉकिंग ऑन रोड यू शुड फॉलो सम बेसिक रूल्स. रोड पे चलते टाइम आपको रोड के कुछ बेसिक रूल्स मालूम होने चाहिए एंड यू शुड फॉलो इट. और आपको रोड के कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए. बहुत से बच्चे रोड के रूल्स फॉलो नहीं करते, विच इज़ डेंजरस. अपने लिए भी डेंजरस होता है और रोड पे जो दूसरे लोग होते हैं उनके लिए भी डेंजरस होता है. सो यू शुड फॉलो ऑल सेफ्टी रूल्स ऑन रोड. रोड के जितने भी रूल्स हैं आपको फॉलो करना चाहिए. सो लेट्स सी व्हाट आर द सेफ्टी रूल्स ऑन रोड. Never run or walk on the road. Walk on footpath. Now as I have said you before, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि रोड पे भागना नहीं चाहिए. सिर्फ रोड के साइड में जो सेफ्टी लाइन ड्रॉ की हुई रहती है येलो कलर की, वो लाइन के साइड ही वॉक करना चाहिए. वो फुटपाथ होता है, फुटपाथ पे ही वॉकिंग होती है. नेक्स्ट इज डू नॉट प्ले नियर द रोड. रोड के पास आप कभी फुटबॉल, बैट बॉल या कोई भी गेम नहीं खेलना चाहिए. क्रॉस द रोड एट जीब्रा क्रॉसिंग. यू नो व्हाट इज जीब्रा क्रॉसिंग. हर सिटी में जीब्रा क्रॉसिंग होती है लाइक दिस, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. दिस इज नोन एज जीब्रा क्रॉसिंग. इसको बोलते हैं जीब्रा क्रॉसिंग. जीब्रा क्रॉसिंग पे चलते हैं और जीब्रा क्रॉसिंग पे जब कोई क्रॉस हो रहा है तो कोई व्हीकल आपको टक्कर नहीं मार सकती. सो इट इज सेफ फॉर यू. Hold the hand of an elder while crossing the road.
as I've said you before, hold the hand of an elder. जैसे मैंने आपको बताया हूँ, हमेशा किसी बड़े के साथ ही रोड पे चलना चाहिए और बड़े लोगों के साथ हाथ पकड़ के ही रोड क्रॉस करना चाहिए. Look right then left and right again before crossing a road. जैसे मैंने आपको बताई हूँ, अपना रोड क्रॉस करने से पहले you should see left, right, right, left again 3 times and then only you cross the road. आपको left right 3 times देखना है, तभी रोड को क्रॉस करना है और किसी बड़े इंसान के साथ हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करना है. आप अकेले रोड क्रॉस नहीं करना, वो आपके लिए भी डेंजरस हो सकता है और दूसरों के लिए भी. अंडरस्टूड? वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स. रेड लाइट सेज स्टॉप, येलो लाइट सेज वेट एंड द ग्रीन लाइट सेज गो. नाउ यू नो दैट वी हैव सम ट्रैफिक सिग्नल्स इन आवर सिटी. अपने सिटी में ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, है ना? तो हमें वो ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए. रेड से स्टॉप, जैसे रेड सिग्नल हो गया तो हमें स्टॉप करना चाहिए अपनी व्हीकल. येलो सिग्नल है सो वी शुड वेट, येलो सिग्नल पे हमें वेट करना चाहिए. एंड जब ग्रीन सिग्नल होता है देन ग्रीन सिग्नल सेज टू गो. जब ग्रीन सिग्नल होता है तभी सारी व्हीकल्स जाती है. सी योर पेज नंबर 127. नाउ वी विल सी सेफ्टी while riding vehicles. इफ़ यू आर राइडिंग व्हीकल्स, अगर आप गाड़ी चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो तो व्हीकल्स को चलाते टाइम क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए, वी विल सी दैट. वी शुड ऑब्जर्व द फॉलोइंग एज टॉट इन द सेफ्टी वीक. हमें ये सब रूल्स को फॉलो करना चाहिए जब आप व्हीकल को चला रहे हो. टू बोर्ड अ बस स्टैंड इन अ क्यू. We must not make a noise or jump around in the bus. Now, when you are moving towards your bus, जब आप अपने स्कूल बस के लिए जाते हो, है ना? So you should walk in a queue. Queue means आपको एक लाइन में वॉक करना चाहिए जैसे आप स्कूल में करते हो. According to the area wise you go. आप लाइन में जाते हो ना एरिया वाइज. यस, सो इन द बस ऑल्सो, बस में चढ़ते वक्त भी आपको पहले लाइन क्यू बनाना चाहिए फिर बस में चढ़ना चाहिए. यू शुड नॉट जंप इन द बस. आप बस में जंप नहीं करना चाहिए. यू शुड नॉट मेक नॉइज. बहुत से बच्चे बस में जंप करते हैं, शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं और दूसरे स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करता है. सो यू शुड नॉट डू लाइक दिस थिंग इन द बस. बस में आपको ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए जैसे जंपिंग हो रहा है या आप चिल्ला रहे हो या दूसरे स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब कर रहे हो. नेवर पुट आवर हेड और हैंड आउट ऑफ द विंडो व्हाइल द बस इज ट्रेवलिंग. जब बस चल रही है सो यू शुड नॉट पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ द विंडो. जब बस चल रही है तो आप अपना हैंड, हाथ और हेड यानी कि सिर विंडो से बाहर नहीं निकालना चाहिए. जस्ट इमेजिन आपने हाथ बाहर निकाला या सर बाहर निकाला और पीछे से कोई गाड़ी आ गई तो आपको क्या होगा, चोट मिल जाएगी, यू गेट इंजर्ड. सो यू शुड नॉट रिमूव योर हैंड और हेड आउटसाइड द विंडो ऑफ अ बस. वी शुड नेवर प्ले इन अ पार्किंग लॉट. पार्किंग लॉट मीन्स वेयर द व्हीकल्स आर स्टैंडिंग. जहाँ पर व्हीकल्स खड़ी होती है वहाँ पर आपको खेलना नहीं चाहिए. ऑलवेज वेयर द सीट बेल्ट इन द व्हीकल्स दैट यू हैव वन. नाउ ऑलवेज यू शुड वेयर सीट बेल्ट. बहुत सारे व्हीकल्स में सीट बेल्ट होती है जैसे आपकी कार हो गई है. तो जब आप कार में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, सीट बेल्ट लगानी चाहिए. नेवर टॉक टू द ड्राइवर वाइल ही इज़ ड्राइविंग. दिस इज़ द मेन थिंग. ये मेन थिंग है. जब ड्राइवर ड्राइव कर रहा है कोई भी गाड़ी, चाहे वो बस हो, चाहे कार हो या चाहे कोई भी व्हीकल हो, तो आपको ड्राइवर के साथ टॉक नहीं करना चाहिए. अगर ड्राइवर के साथ आप टॉकिंग करोगे तो ड्राइवर का माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे उसका जो कंट्रोल है व्हीकल के ऊपर वो लॉस हो जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना. सो यू शुड नॉट टॉक विद द ड्राइवर्स. ड्राइवर्स के साथ कभी बात नहीं करना चाहिए क्योंकि ड्राइवर्स गाड़ी चलाते हैं और उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ता है. लास्ट इज डू नॉट प्ले विद द विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल्स. ना डू नॉट प्ले विद द विंडोज और डोर्स मतलब हम जो व्हीकल्स में जा रहे हैं जैसे स्कूल बस हो गया या कार हो गई तो उसके विंडोज़ और डोर्स से खेलना नहीं चाहिए.
सडनली विंडो ओपन हो गई और आप बाहर गिर गए तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या डोर ओपन हो गया और आप डोर के पास खड़े हो और आप नीचे गिर गए तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। सो डू नॉट प्ले विद द विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल। आपको गाड़ी के डोर्स और विंडोज, खिड़की दरवाजे से बिल्कुल खेलना नहीं चाहिए। अंडरस्टूड? नाउ हियर आर सम साइंस ऑफ रोड्स, मीन्स रोड साइंस। यहाँ पर कुछ रोड के साइंस है जो आपको लर्न करना है। सी, दिस इज द साइन ऑफ नो एंट्री। सी, एरो एंड क्रॉस. So this is the sign of no entry. Second one, no right turn, means you will not turn your vehicle to the right side. आप right side में turn नहीं कर सकते. Right turn means ये right turn का सिग्नल है तो आप right turn कर सकते हो, और अगर right turn के बाद ऐसा वाला आया आपको सिग्नल तो आप right side पे turn नहीं करोगे. Now cross. क्रॉस मीन्स रोड इज क्लोज, मतलब वो रोड नहीं चल रही जहाँ पर क्रॉस का साइन होगा. दिस साइन इज नो हॉर्न. नो हॉर्न मीन्स यू कैन नॉट हॉर्न हियर, मतलब आप यहाँ हॉर्न नहीं बजा सकते हो. दिस इज हॉर्न प्लीज, मीन्स हियर यू कैन प्ले और प्रेस द हॉर्न, यहाँ आप हॉर्न बजा सकते हो. दिस साइन इज फॉर नो लेफ्ट टर्न. ये साइन ये शो करता है कि आप लेफ्ट टर्न नहीं करोगे. दिस इज द साइन ऑफ लेफ्ट टर्न. ये साइन आपको लेफ्ट टर्न करने के लिए. स्कूल अहेड. एज यू कैन सी द चिल्ड्रन इज मूविंग विद द स्कूल बैग. जैसे ये बच्चा स्कूल बैग लेके जा रहा है तो ये साइन शो करता है, इंडिकेट करता है कि आगे स्कूल है. सो यू शुड ड्राइव स्लोली. आपको ड्राइव स्लो करना पड़ेगा. Now this signal is for no parking. No parking means यहाँ पर आप vehicle park नहीं कर सकते. And this signal is for parking means यहाँ पर आप vehicle park कर सकते हो, means अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हो. So these are the road sign. ये कुछ roads के signs है जो आपको पता रहना चाहिए. It is compulsory. Now after road signs we will see the safety at playground. Yes, in the playground you are not having any type of safety. प्लेग्राउंड पे खेलते टाइम आप किसी टाइप का सेफ्टी नहीं रखते हो. एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप प्लेग्राउंड पे खेल रहे हो तो आपको कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. सो लेट्स सी व्हाट सेफ्टी रूल्स यू हैव टू फॉलो. इफ वी ऑब्जर्व सेफ्टी एट प्लेग्राउंड वी विल नॉट बी हर्ट, अदरवाइज अ मेजर इंजरी कैन हैपन. नाउ व्हाट इज गिवन? इफ़ यू ऑब्जर्व सेफ्टी एट प्ले ग्राउंड यू विल नॉट हर्ट. अगर आप प्ले ग्राउंड पे गेम खेलते खेलते सेफ्टी फॉलो करोगे तो आपको कोई इंजरी नहीं होगी और आप भी सेफ रहोगे और आपके साथ साथ दूसरे भी सेफ रहेंगे. नाउ टर्न द पेज. नाउ you have to learn the following things. These are some safety rules when you play in the playground. जब आप प्लेग्राउंड पे खेलते हो तो ये कुछ सेफ्टी रूल्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए. ऑलवेज प्रीफर टू प्ले इन द पार्क और प्लेग्राउंड. नाउ ऑलवेज प्रीफर टू प्ले इन द पार्क और प्लेग्राउंड मीन्स पार्क और प्लेग्राउंड में खेलना ही प्रेफर करना है. अब घर पे खेलोगे तो आपको चोट लग जाएगी. पार्क और प्लेग्राउंड में क्या है, खुला एरिया होता है ना, और बहुत सारे वहाँ गेम्स होते हैं जो आप खेल सकते हो, जैसे सी सॉ, स्विंग, है ना. ये सब गेम्स आप पार्क और प्लेग्राउंड में खेल सकते हो. नेक्स्ट, डू नॉट फाइट और हर्ट ईच अदर वाइल प्लेइंग. नाउ एज यू नो दैट यू फाइट फॉर द गेम्स. आप गेम्स के खेलने के लिए फाइट करते हो, जैसे कि स्विंग हो गया है. एक अगर स्विंग कर रहा है तो आप लड़ते हो कि आपको भी स्विंग करना चाहिए. बट यू शुड नॉट फाइट, यू शुड शेयर द थिंग्स. आपको शेयर करना चाहिए. यू शुड नॉट पुश और पुल टू गेट अ चांस ऑन स्विंग और स्लाइड. नाउ दिस थिंग यू डू, ये चीज़ आप करते हो. अगर आपको चांस चाहिए स्विंग करने के लिए तो आप धक्का दे देते हो, जिससे चोट लग जाती है, बहुत डेंजर वाली. सो यू शुड नॉट पुश और पुल. आपको धक्का नहीं देना चाहिए. यू शुड वेट. ओके, वेट करना चाहिए. 5 टाइम्स आप स्विंग करो, 5 टाइम्स कोई दूसरा स्विंग करेगा. सो एवरीबडी विल गेट द चांस. सबको चांस मिलेगा
स्विंग करने के लिए और स्लाइड करने के लिए। डू नॉट टच और टेक द अननोन थिंग्स लाइंग इन द प्लेग्राउंड। यस, डू नॉट टच। प्लेग्राउंड पे अगर किसी की अननोन थिंग है, अगर वो थिंग आपको बिलोंग नहीं करती है, अगर वो आपकी चीज नहीं है या आपके फ्रेंड की चीज नहीं है, तो उसको बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। अंडरस्टूड? प्लेग्राउंड में ऐसे बहुत सारी चीजें फेंकी होती है जो आपकी नहीं होती है और वो बहुत डेंजरस हो सकती है आपके लिए। सो यू शुड नॉट टच द थिंग्स लाइंग इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में फेंकी हुई चीजों को आपको टच नहीं करना चाहिए। So these were the rules of playground. Now we will see some safety rules in school. In school also you have to follow some safety rules, and what are that safety rules we will see. Do not play by jumping on desk and chairs. Yes, अपने क्लास के टेबल और चेयर पे, डेस्क और चेयर पे आपको कभी भी जंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जंप करें और आपका पैर स्लिप हो गया तो आपको क्या लगेगी? चोट लगेगी। यू विल गेट हर्ट वेरी बैडली। अंडरस्टूड? इन द प्ले ग्राउंड नेवर राइड डबल ऑन स्विंग। यस, इन द प्ले ग्राउंड में ये स्विंग है, ठीक है, इसमें कभी भी डबल यानी कि दो स्टूडेंट्स एक साथ नहीं बैठ सकते, है ना। वन स्टूडेंट विल सिट ओनली एंड ही विल स्विंग, देन ही विल गिव द चांस टू अनदर वन, देन अनदर स्टूडेंट विल स्विंग। स्विंग में कभी भी दो लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, एक जना बैठेगा फिर बाद में दूसरे को चांस मिलेगा। रनिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स इन द स्कूल इज ऑलवेज डेंजरस। नाउ रनिंग अप एंड डाउन, आप स्कूल में जैसे ही लंच टाइम की बेल बजती है तो आप भागते हो ना स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों पे हैंड वॉश करने के लिए। यस, यू शुड नॉट रन। आपको स्कूल में भागना नहीं चाहिए। यू शुड ऑलवेज वॉक इन अ क्यू। हमेशा लाइन बना के जाना चाहिए। अंडरस्टूड? यू शुड नेवर थ्रो थिंग्स एट ईच अदर। यस, हमेशा दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर थिंग्स थ्रो नहीं करना चाहिए, और आप करते हो। यू थ्रो योर पेंसिल, यू थ्रो योर इरेजर, यू थ्रो द पेपर ऑल्सो। आप स्कूल में पेपर, पेंसिल ये सब एक दूसरे के ऊपर थ्रो करते हैं, बट यू शुड नॉट थ्रो। आपको ये सब फेंकना नहीं चाहिए। इट कैन बी डेंजरस। अगर पेंसिल किसी के आईज में लग गई तो, अगर किसी के नोज में लग गई तो। यस, सो यू शुड नेवर थ्रो द थिंग्स एट ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर कभी थिंग्स फेंकना नहीं चाहिए। डू नॉट स्टे बैक इन स्कूल अलोन आफ्टर द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैव लेफ्ट। अगर स्कूल में सब बच्चे चले गए हैं तो आपको स्कूल में अकेला नहीं रहना चाहिए। यू शुड इन्फॉर्म द टीचर्स दैट नो वन हैज़ कम। आपको टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपके घर से कोई नहीं आया है आपको लेने के लिए। तो स्कूल में अकेले बिल्कुल भी नहीं रहना है आपको। अंडरस्टूड? सो हियर वी एंड आवर टुडेज लेसन. It's the time to take leave. I'll see you in the next video. Till that time, stay safe, stay home, stay healthy. See you soon.